A very fresh morning to everyone. In today's editorial, we have got a very important topic to discuss on, and this is all about the oldest party of our country, that is Congress. Before we come to this very editorial, let me make you understand about the topic what we are going to discuss about. We all know that Congress has been out of office for last 9 or 10 years. It is consecutive two terms when it could not score very good in elections. But in order to give new life to this very party, there is a committee which has been formed or constituted recently to represent every section of the country, and every caste and creed should be included in Congress so that people may once again restore their faith. Now it's time to talk about what are the things that have been changed in Congress to give a proper shape or to give a message of Vasudev Kutumbakam, and including that everybody is equal in the eyes of Congress. And in order to talk about equality and everything that Congress is known for, a special meeting has been organized, and now it is known to everyone that now the president of Congress is Mallikarjun Kharge. There is no longer any member from this family that we call Gandhi family is the part of this Congress working committee or not. Let me check it out. So let me start this editorial. It starts with election and selection. Yani considering election, yani forthcoming election in 2014, they have got a number of selections in the committee. That's why the title is election and selection. As you can see that on the new Congress working committee, yani new Congress working committee has been constituted or formed, and about that we are going to talk about in this very editorial. The Congress needs to be truly representative to make a viable bid for power. कांग्रेस नीड्स टू बी, कांग्रेस को ज़रूरी है क्या होना, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, सच्चे मायने में रिप्रेजेंटेटिव किस चीज़ का, यानी एक अलग अलग, वायबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इन द से व्यवहारिक, तो व्यवहारिक बिड का मतलब प्रयास होता है फॉर पावर, यानी यू कैन अंडरस्टैंड इन अनदर वे कांग्रेस नीड्स टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ different castes and creeds and religions, means there should be combination to make a viable bid for power. bid का मतलब ऐसे बोली लगाना भी होता है, bid का मतलब प्रयास करना भी होता है, और bid से ही बीडर बना जो बोली लगाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे प्रयास करने के सेंस में आ रहा है, यानी एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक प्रयास करने के लिए, पावर के लिए कांग्रेस को ज़रूरत है कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इसके लाए जाएं. अचीविंग द एम्बिशियस गोल ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, गोल जो है इसका किस चीज़ का भाई, द सोशल रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी दैट द कांग्रेस सेट फॉर itself at brainstorming session in Udaipur, that is in May 2022, was never going to be easy. यानी इसको एक अचीव करना था गोल, कौन सा गोल, कि सारे जो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड्स के लोग हैं उसका रिप्रेजेंटेशन किस में हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हो. इसको लेकर के मंथन हुआ था. ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है मंथन. ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन 2022 के मई महीने में उदयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस एम्बिशन को फुलफ़िल करना अभी भी बहुत इजी नहीं नज़र आता. ठीक है, यानी जो इसका गोल था जो उदयपुर में डिसाइड किया गया था कि सोशल रिप्रेजेंटेशन का, वो गोल अभी भी फुलफ़िल होता हुआ इजी नहीं नज़र आ रहा है. इट टुक पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे nearly 6 months after he was authorized by the Raipur session of the All India Congress Committee
in February 2023 to finally announce the new CWC on Sunday. Means now you can understand what is written over here. मल्लिका अर्जुन खड़गे को करीब 6 महीने लग गए जब से उनको ऑथराइज्ड रूप से रायपुर के सेशन में, जो कि फरवरी 2023 में हुआ था, जो उनको नए कह सकते हैं कि पार्टी के प्रेसिडेंट बनाया गया था। यानी पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के 6 महीना तक, यानी 6 महीने से ज़्यादा उनको समय लगे इस बात का अनाउंस करने में कि अगला जो CWC है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो सेशन है वो संडे को होगी, विच ऑल्सो हैपन टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और ये दिन जो है, संडे का जो दिन जो गुजरा, उसी दिन भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था, जिनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी विश्वविख्यात थे और हमारे देश में कंप्यूटर लाने के लिए इनको जाना जाता है। While combining experience and youth, Mr. Khadge has drawn up a list that significantly enhances diversity in the party's highest decision-making body. CWC है क्या? कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और ये जो है किसी भी मुद्दे पर पार्टी के अंदर जो भी राय लेनी होती है, सारे बैठते हैं और बैठ करके मंथन करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें तवज्जो दिया गया है एक्सपीरियंस और यूथ को, यानी पुराने लोगों को भी इसमें कंबाइन किया गया है, साथ ही इसमें यूथ को भी प्रायोरिटी दी गई है। और ऐसा करके मिस्टर खड़गे हैज़ ड्रॉन अप अ लिस्ट दैट सिग्निफिकेंटली इन्हांसेस डाइवर्सिटी। ऐसा करके एक इस तरह का एक लिस्ट तैयार किया है जो सिग्निफिकेंटली मतलब इम्पॉर्टेंट तौर पे इन्हांस करता है, बढ़ाता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनकी विविधता की बात हो रही है। इन द पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, पार्टी के ऊपरी डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, तंत्र है, उसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ आप यूथ को देखते हैं जो कि डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, विविधता को बढ़ावा देता है। नाउ नेक्स्ट, हिज ओपोनेंट्स, उनके जो विरोधी हैं, इन द 2022 इलेक्शन फॉर द टॉप पोस्ट शशि थरूर। 2022 में जो इलेक्शन हुए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, तो उस समय शशि थरूर जो थे मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध में खड़ा हुए थे, यानी उनके ओपोनेंट के तौर पे खड़े हुए थे। और लेकिन तभी से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे। फिर भी इस बार की जो मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको शामिल कर लिया गया है। फाइंड्स अ प्लेस का मतलब होता है उनको कर लिया गया। इन अ कमेंडेबल अप्रिसिएशन ऑफ इट eternal democracy and an encouraging signal to many skeptics of the party। और ऐसा करना एक कमेंडेबल अप्रिसिएशन है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है डेमोक्रेसी के लिए। एंड इंकरेजिंग सिग्नल, और इसमें एक सिग्नल मिलेगा, बहुत सारे स्केप्टिक्स हैं जो शक करते हैं पार्टी के अंदर, उनको भी एक प्रकार का सिग्नल मिला या फिर मैसेज मिल गया। Half the CWC excluding invitees are from scheduled caste। और इसमें जो CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो SCs कैटेगरी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ट्राइबल्स के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं और विमेन हैं। विच मीट्स द उदयपुर एम्बिशन, जो कि उदयपुर का एम्बिशन था उसको फुलफिल करता है। मीट्स मतलब फुलफिल करना। But when invitees are accounted for, the social composition tilts in favor of, tilts मतलब झुकता है किसके फेवर में? अपर कास्ट के और माइनॉरिटीज के। Even as it meets the 50 under 50 एज क्राइटेरिया। करा कि लेकिन अगर हम लोग बात करें वैसे इन्वाइटीज को जो अकाउंटेड फॉर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सोशल कंपोजिशन के लिए, वो किस ओर झुकता है? अपर कास्ट की ओर और माइनॉरिटीज़ की ओर।
इसमें 50 का जो एज क्राइटेरिया जो रखा गया है उसके अंडर की बात करें तो a number of fresh faces from the middle rungs have मेड इट टू द लिस्ट। इसमें से कई ऐसे फेसेस हैं जो मिडिल में हैं। मिडिल कहने का मतलब ना यंग है ना ओल्ड है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, अ दलित लीडर एट 60 साल के हैं। कमलेश्वर पटेल द 49-year-old ओबीसी लीडर फ्रॉम द इलेक्शन बाउंड मध्य प्रदेश से हैं। आर इन वाइल दामोदर राजा नरसिम्हा 64 फ्रॉम तेलंगाना इज़ अ परमानेंट इनवाइटी। ये सारे जो हैं ये नाम दिए गए हैं जो कि मिडिल में आ रहे हैं। आगे देखते हैं। मिस्टर खड़गे हैज़ द अनविएबल टास्क, यानी खड़गे के पास जो ये टास्क है वो बड़ा इजी नहीं है। एक्सरसाइजिंग हिज अथॉरिटी वाइल 3 मेंबर्स ऑफ द गांधी फैमिली, इसमें 3 मेंबर गांधी फैमिली से भी है, सोनिया, राहुल एंड प्रियंका, रिमेन एक्टिव। यानी जो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट हैं उनके लिए एकदम इजी टास्क नहीं है कि कोई भी ऑथराइज्ड काम करने का, यानी अपना जो अथॉरिटी है उनको वो अपने तरीके से चलाने का। लेकिन हाँ, उनके साथ 3 मेंबर्स और हैं गांधी फैमिली के, सोनिया, राहुल और प्रियंका, और ये एक्टिव रहते हैं। बट ही अपीयर्स टू बी अप टू इट, लेकिन ऐसा लगता है कि खड़गे जी जो हैं ऐसे प्रतीत होते हैं कि इनसे ऊपर हैं। द लिस्ट रिफ्लेक्ट्स द पार्टीज कीन अटेंशन टू द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस इन द हार्टलैंड। इसमें जो पार्टी के जो लिस्ट हैं उसमें पता चलता है कि जो पूरा CWC के जो लिस्ट में जो लोग शामिल किए गए हैं वो आने वाले असेंबली इलेक्शंस को देखते हुए किए गए हैं। छत्तीसगढ़ मिनिस्टर तमराधवाज साहू, an influential OBC leader, is expected to play a crucial role। अगर राजस्थान की बात करें, इन राजस्थान वाइल चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इज गिवन अ फ्री हैंड, इनको फ्री हैंड दे दिया गया है टू लीड द चेंज चार्ज। द इंडक्शन ऑफ हिज चैलेंजर सचिन पायलट एंड ट्राइबल लीडर महेंद्रजीत सिंह मालवीय टू द CWC इज एक्सपेक्टेड टू रेनफोर्स पार्टी यूनिटी। अब यहाँ पे पार्टी की यूनिटी को पुनः बरकरार करने के लिए ये जो सचिन पायलट हैं और एक और जो नाम दिया गया मालवीय जी को CWC में जगह दी गई है, ताकि दोनों में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उसको यूनिटी के तौर पे लाया जाए। द पार्टी हैज़ ट्राई टू रीएश्योर डिसकंटेंटेड सोशल ग्रुप। पार्टी ने कोशिश की है कि जो वैसा सोशल ग्रुप, वैसी जाति जो कि डिसकंटेंटेड है, सेटिस्फाइड नहीं है, उसको शांत करने के लिए रिबेलियस लीडर, जो वैसे लीडर जो अपने पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसको भी एसुएज मतलब शांत करने के लिए ये प्रयास किया गया है। एंड द कंटिन्यूएशन and the constitution of the new body is largely representative of the geographical and social expanse of India। नया जो बॉडी बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है पार्टियों का जो CWC के अंदर, वो बहुत बड़े पैमाने पर जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक और सोशल मतलब सामाजिक एक्सपेंस ऑफ इंडिया, जो भारत का फैलाव है, उसको दर्शाता है। दो सम डिसइंचेंटमेंट माइट सरफेस इन द डेज अहेड, हालांकि कुछ और भी नाराज़गी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। द न्यू CWC रिफ्लेक्ट्स बोथ इमेजिनेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। जो नया जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें रिफ्लेक्ट करता है, कल्पना भी है और कॉम्प्रोमाइज़ भी किया गया है। वाइल दिस इज़ अ गुड स्टार्ट, हालांकि अच्छा स्टार्ट है, देयर इज़ मोर दैट द कांग्रेस नीड्स टू डू टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाइवर्स नेशन। लेकिन इससे भी ज़्यादा कांग्रेस को करने की ज़रूरत है अगर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती है एक सच्चे विविधता वाले देश को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी। बिसाइड्स स्ट्रैटेजिंग फॉर इलेक्शंस एंड इम्प्रूविंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन,
एंड बिकमिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स इन रन अप टू 2024। यानी इसके अलावे कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए कम्युनिकेशन बिल्डअप कर रही है, सेंटर बनना चाहती है अपोजिशन पॉलिटिक्स की, जो कि 2024 में इलेक्शन होना है उसको लेकर के। तो ये सब को देखते हुए पार्टी कोशिश कर रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।